ஆ? புரியல. ஃபர்ஸ்ட் நீ மொபைல் டேட்டால போடு உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ் பிரான்ச் ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணி போ. சிஎஸ் விட நீ வைஃபை போடு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. மொபைல் டேட்டால ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. சார் ப்ராப்ளம் வந்து இல்ல. ப்ராப்ளம் வந்து உள்ள போனா இதுவே காட்ட மாட்டேன். முதல்ல என்னாச்சு? முதல்ல காமிச்சா அப்புறம் வெளில பிடிச்சதும் வரல. இல்ல இல்ல எதுவுமே வேண்டாம். ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணீங்க? ஆஃப் பண்ணிட்டா? ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண மொபைல். ஒன்னும் அந்த அழகா சின்ன பெரிய பசங்க இங்கதான் ஒரே டென்ஷன். சார் டிவி இப்ப பரவாயில்ல, இங்க வரல, அதான் ஏதோ ஒண்ணு அங்க அவனுக்கு எப்படி ஓடுது புரியல. மொபைல் ஆஃப் பண்ணி போடலனா இங்க வா இங்க வா. அழகா உட்காந்துருக்கான் பசங்க. இங்க எது போ பார்த்தாலும் டென்ஷன். இங்க வா. இப்ப ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணியா? ஒன்னும் புரியல ஏன் இப்படி நடக்குது. இங்க மட்டும் வந்து பிரச்சனை வருது, எங்கேயும் வரல பிரச்சனை. அழகா உட்காந்துருக்கான். சும்மா மாத்தி 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 ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேன் 6 மாசமா. ஒரு நிமிஷம் தான். ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண. We just get started. Just wait. Let the Acharya ji come. அவ்வளவு அழகா உட்கார்ந்துருக்காங்க பசங்க. இரு ஏன் இங்க வருது அவ்வளவு பிரச்சனை புரியல. அஞ்சு நிமிஷத்துல ஆச்சாரியஜி வந்துருவாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடங்குவோம் ப்ரோக்ராம். அதுவரையும் அமைதியா எல்லாருமே லவுடா நம்ம இந்த காயத்ரி மந்தர் ஜாப்பு சொல்லுங்க. நீங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணாதீங்க.
ஆச்சாரி வந்துட்டார். இது வேற இங்க வேற ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. புரியல, இதெல்லாம் ஏன் இங்க நடுது புரிய மாட்டேங்குது. ஓம் ஓம் எல்லாருமே இப்போ ரெடியா இருப்போம். அமைதியா உட்காருவோம். आर्य समाज आर्य वीर वीरांग नदल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु के तरफ से आप सबका बाल सत्संग में हार्दिक स्वागत है. இன்றைய பால் சத்சங்கில் ஆர்ய சமாஜ் ஆர்யவீல் வீராங்கனதல் அஜ்மேர் ராஜஸ்தான் ஜெய் குருதேவ் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் சென்னை சார்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வணக்கம். நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் நிகழ்ச்சி, முதல் நிகழ்ச்சி யோக அபியாஸ், யோகாசனா. ஆச்சாரி என்ன பண்றாரோ அப்படியே நீங்க அவரை காப்பி அடிக்கிறீங்க, பண்ணுங்க. ஒருவேளை உங்கள புரியலன்னா அவர் உட்காந்து பாருங்க, அது பிறகு பண்ணுங்க. ரைட்டா? நமஸ்காரம் ஆச்சாரி. नमस्ते जी, नमस्ते. कार्तिक शुरू करें जी? कीजिए. और என்னால ஒண்ணு கண்ட்ரோல் பண்ணல. ஏன்னா आइए योग सत्र शुरू करते हैं. सभी सीधे होकर बैठें, आंखें कोमलता से बंद, नमस्कार मुद्रा. मन ही मन परम पिता परमेश्वर का ध्यान. पूर्ण श्वास भीतर भरेंगे. एक बार ओंकार, फिर गायत्री महामंत्र एक साथ. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति.
आज हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास योग सत्र के अंतर्गत। सबसे पहले तो सभी स्थान लेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी लोग। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और शुरू करते हैं योगाभ्यास। दोनों हाथों को बंद रखते हुए हल्की सी स्पॉट जॉगिंग। हल्का सा पैर को ऊपर की ओर लाते हुए सामने से वापस पीछे की ओर, एड़ियां वापस, धीरे धीरे स्पॉट जॉगिंग। साइड से धीरे धीरे वापस, हल्की सी जंपिंग करेंगे, दोनों पैर एक साथ, लंबा लंबा सांस। धीरे धीरे वापस, स्लोली रिलीज। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, सांस खाली करते नहीं चलाएंगे। इनहेल, एक्सेल। रिलीज, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट पोजीशन। खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10। चेंज, दोनों पैर लेग्स अपार्ट, दोनों हाथ सामने। इनहेल, 1 2, लोअर बैक से बैकवर्ड बेंडिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, दोनों पैर वापस मिलाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, मुट्ठियां बंद रखते हुए चलेंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6। रिलीज, चेंज। नेक्स्ट जॉइंट मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, दोनों हाथों को रोटेट करना, शोल्डर रोटेट। 1 2 3 4 5। रिवर्स, 1 2, एल्बो को अपने ईयर के टच करते हुए, 3 4 5। रिलीज। नेक्स्ट, एक्सेल करते दोनों हाथ सामने। रिलीज। नेक्स्ट जॉइंट मूवमेंट, रेस्ट के लिए दोनों मुट्ठियां बंद। चलिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 चेंज 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 चेंज दोनों पैर खोलते हुए लेग्स अपार्ट आराम से दोनों पैर को ढीला छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ते हुए चलाएंगे एक साथ तेज फास्ट और फास्ट रिलीज रिलैक्स नॉर्मल ब्रीदिंग होल बॉडी रिलैक्स पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए कंधों से लेकर हाथों की हथेलियों तक पूरा ध्यान शोल्डर से अपने पाम्स तक फील करें जो एक्टिविटी हमने की उसे फील करें नेक्स्ट अगला अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास हम कर रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास तो आराम से करते जाएं देखते जाएं और करते जाएं स्टैंडिंग पोस्चर्स सबसे पहले हम बनाएंगे वृक्षासन ट्री पोज बैलेंसिंग पोस्चर है ट्री पोज राइट लेग को सीधा रखना है घुटने को नहीं मोड़ना नी फोल्ड नहीं करना नी बेंड नहीं करना और लेफ्ट लेग को उठा करके हमने इस तरह से राइट थाई पे टिकाया इनहेल एंड होल्ड देन दोनों हाथों को साइड से लाए ऊपर की ओर और दोनों हाथ जोड़ दे इस तरह से ऊपर ट्री पोज वृक्षासन सामने एक पॉइंट पर देखना इनहेल एंड होल्ड यदि आपका बैलेंस बनता है तो आप आंखें खोल भी सकते हैं और ब्रीदिंग नॉर्मल भी रख सकते हैं रिलीज रिलैक्स इसी पोस्चर को हम राइट लेग को ऊपर रखते हुए लेफ्ट लेग नीचे रहेगा राइट लेग को उठाया होल्ड करते हुए इस तरह से टिकाएं दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाते हुए inhale and hold don't move full inhale and hold release relax normal breathing whole body relax ये हमने बनाया ट्री पोज ठीक है जी नेक्स्ट अगला अभ्यास यहीं से स्थिति लेते हुए हम बनाएंगे दोनों पैरों को लेग्स अपार्ट इस तरह से हम खड़े हैं एक पैर को ले गए लेफ्ट साइड और यहां से राइट साइड गए हम ठीक है दोनों पैरों पे बैलेंस रखते हुए आराम से
हम उठाकर ला रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड को शोल्डर की सीध में, यहां से हथेली आसमान की ओर, इनहेल अप, और यहाँ से धीरे से झुकेंगे हम राइट हैंड साइड, चक्रासन। 90 डिग्री लाकर अपने हाथ को कान के पास सटाते हुए रोक देंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल। फील करेंगे हमारे कमर पर जो स्ट्रेच है, बैक पर जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसे फील कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे से वापस रिलीज, ऊपर लाएंगे हाथ को, एक्सेल डाउन। साइड चेंज करेंगे, अब राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे धीरे से सांस करते हुए। इनहेल, inhale, full inhale and stretch your whole body upside. Exhale, down. Normal breathing. Release. Inhale. Exhale. आराम से रिलैक्स। दोनों पैर वापस मिला लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला अभ्यास, नेक्स्ट पोस्चर, स्टैंडिंग। नेक्स्ट पोस्चर, यहां से हम बनाएंगे हस्त पादासन या पाद हस्तासन। दोनों पैर मिलाते हुए एक साथ रखते हुए स्थिति लेंगे, दोनों हाथ साइड से, हथेली आसमान की ओर। इनहेल अप। अब यहां से 90 डिग्री तक झुकेंगे पहले। एक्सेल, पूरा 90 डिग्री। सामने देखिए, नीचे नहीं देखना, अभी नीचे चले गए आप लोग। गलत गलत, सामने देखिए 90 डिग्री पे, इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने। अब यहां से धीरे धीरे जाएंगे। एक्सेल डाउन, और अपने पैरों के अंगूठों को पकड़िए। कोशिश कीजिए, या फिर हथेली साइड में टिकाते हुए अपने फोरहेड को नी से टच करने का प्रयास। नी बैंड नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। नी बैंड नहीं होनी चाहिए। यहां से इस तरह से। धीरे से वापस आएंगे। इनहेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, तो हमने बनाया हस्त पादासन या पाद हस्तासन, इसे कहते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, कमर के लिए, एब्डोमेन मसल्स पर और बैक पर जो खिंचाव आया उसे आपने महसूस किया होगा। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक। पश्चिमोत्तान हस्तपादासन। नेक्स्ट, अगला अभ्यास हम बनाएंगे नटराज आसन। बहुत अच्छा है बैक के लिए हमारी और चेस्ट के लिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, नटराज आसन को। आता भी होगा आप में से कई बच्चों को। इस तरह हम खड़े हैं, एक पैर को आगे ले गए, लेफ्ट लेग को हमने आगे निकाला, यहां से उस पर बैलेंस बनाते हुए लेफ्ट नी को
फोल्ड करते हुए, और यहां से आप क्या करना, अपने राइट लेग को ऊपर की ओर उठाना इस तरह से, यहां से पकड़ी, कोशिश कीजिए, यहां से राइट लेग को पकड़ा इस तरह से और ऊपर की ओर उठना इस तरह। इतना ही बनाएंगे जितना आपसे बन सकता है, पूरा श्वास भरकर। इनहेल एंड होल्ड, बनाइए, कोशिश कीजिए। हाथ बाद में ऊपर जाएगा, पहले पीछे से पैर पकड़ने की कोशिश कीजिए और इस तरह से पैर को लेकर आइए। रिलीज, चेंज, पोजीशन चेंज कीजिए, दूसरी ओर से बनाएंगे। इस पैर को पकड़ा, यहां से उठाया और ऊपर की ओर लाते हुए रिलीज, रिलैक्स, नटराज आसन हमने बनाया। अब नेक्स्ट पोस्चर, हम बनाएंगे वीरभद्रासन। वो भी स्टैंडिंग पोस्चर है, बैक के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसमें क्या करना, दोनों पैर मिलाकर हम बैठे हैं, खड़े हैं, राइट लेग को हमने आगे लिया और यहां से दोनों हाथों को साथ में उठाते हुए इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लाए, राइट लेग को बेंड किया आगे से और धीरे धीरे से आगे की ओर झुकते जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, और पैर पीछे से उठ जाएगा। बनाइए, कोशिश कीजिए, सामने से भी देख सकते हैं आप। इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग, टी पोजीशन, टी बननी चाहिए आपकी, टी की पोजीशन, पीछे वाला पैर ऊपर, हाथ सामने, होल्ड, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। बच्चों पे कंसंट्रेट करेंगे, फोकस स्टूडेंट पे कीजिए। राज जी से मैं निवेदन करूंगा, फोकस स्टूडेंट पर बनाइए, टी पोज। धीरे से वापस, चेंज, पोजीशन चेंज, लेफ्ट लेग को आगे की ओर रखते हुए, राइट लेग पीछे की ओर, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड होल्ड। सांस भर करके आपको पोजीशन बनानी है होल्ड की, और यदि बैलेंस आपसे हो जाता है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। वीरभद्रासन, पूरा श्वास भरिए, रिलीज, रिलैक्स, आराम से। अगला अभ्यास हम बनाएंगे, लास्ट पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, लास्ट ताड़ासन। ये बहुत सरल है, सभी से हो जाएगा, बहुत अच्छा पोस्चर है, लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी कम करने में, दूर करने में हमारी मदद करता है, बच्चों की लंबाई भी बढ़ाता है। ठीक है,
दोनों पैरों को मिलाकर रखा हमने और धीरे धीरे से श्वास भरते हुए अपने पंजों पे फीट के बल खड़े होना है हमें और दोनों हाथों को धीरे धीरे से साइड से ऊपर की ओर लाएंगे, हथेली आसमान की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर खींचिए आसमान की ओर, पूरा स्ट्रेच कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। Release and relax. Normal breathing. ताड़ासन हमने बनाया, एक बार और बनाएंगे इसको, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों हाथ इस तरह सामने रखते हुए श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर लाते हुए पंजों के बल खड़े होना है, इस तरह से दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर लाते हुए फुल स्ट्रेच करना बॉडी को। ताड़ासन। Release, relax. Normal breathing. Whole body relax. अब आप बैठ जाएंगे धीरे से। प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट सत्र होगा आपका यज्ञ का, हवन का। उसके लिए सभी लोग स्थिति लेंगे। ओम। ब्रीदिंग नॉर्मल। அடுத்த நிகழ்ச்சி நம்ம ஆச்சாரியஜி ஹவன் ஹோமம் பண்ண போறாரு. சோ நீங்க தயவு செய்து எல்லா பசங்க ஒரே இடத்துல பொறுமையா உட்காந்துட்டு, ஆச்சாரியஜி என்ன சொல்றாரோ ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியாது, ஆனா அந்த மந்திரத்தை கேட்டால் உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் பவர், நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல குணம் கடவுள் கொடுப்பார். राइटा? अब थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे हमारे आचार्य जी हवन की प्रतिक्रिया। एक ही जगह पे बैठ के सब आनंद लें, और अगर आपको ये मंत्र आते हैं तो उच्चारण कीजिए, नहीं तो आप उन मंत्रों को सुनिए और आपको वो मंत्र खूब लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद।
आचार्य जी हवन। हाँ जी, शुरू करते हैं हवन। हाँ। यज्ञ हम शुरू करने बैठ रहे हैं, यज्ञ शुरू कर रहे हैं, हवन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस समय आप जैसे 5 मिनट का हमें गैप लेना पड़ता है, तो उस समय या तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं बैठकर, या आप कोई भजन गुनगुना सकते हैं ईश्वर भक्ति का। तो समय का सदुपयोग हो, इसका ध्यान रखें। सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसमें आप जागते हैं और इतना सुंदर कार्यक्रम आप इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप कोशिश करके ध्यान रखें कि हमारा एक एक मिनट जो कीमती है उसका हम सदुपयोग कर सकें। व्यवस्थाओं में थोड़ा समय लगता है, तो आप भी अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आइए सभी मिलकर के शुरू करते हैं यज्ञ। प्रार्थना स्थिति, पूर्ण श्वास भरें, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले हम करेंगे आचमन। आचमन के लिए स्थिति लें, जलपात्र। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मयि श्री श्रेतां स्वाहा।
अंग स्पर्श। ओम वाङ्मयास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेधानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। हाथ जोड़कर बैठिए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना हम सभी मिलकर करेंगे। जिनको याद है वे लोग बोल सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद, मन में प्रभु का ध्यान। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमाने शानास्त्रकीये धामन्नरैरयन्त। ओम अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं द्विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। दीप प्रज्वलन करेंगे अगले मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः,
ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना न मन्नाद्याया ददे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयं च अस्मिन् सदस्ति अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अगले 4 मंत्रों से 3 बार समिधा दान। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेत्त वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसी नान्नादेन समेधय स्वाहा। नमो जात्वेत्सेदन्नमः। ओम समिधा अग्निन्दोऽस्य तगतिर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। नमः। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातिवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातिसेदन्नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठे। स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे इदन्नमः। पंचघृतावती। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेत्त वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने चात्वेत्सेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेत्त वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने चात्वेत्सेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेत्त वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेत्त वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेत्त वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमः। जल प्रसेचन। ओम अदिते अनुमन्य स्व। ओम अनुमते अनुमन्य स्व।
ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर् वाचं न स्वदतु। ओम अग्नये स्वाहा। उत्तर दिशा में आहुति घृत से। इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। अब घृत और सामग्री दोनों से आहुतियां देंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु ऋषेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। स्वाहा का उच्चारण आप सभी करें एक साथ। स्वाहा का उच्चारण हम सभी एक साथ करें, कोशिश कीजिए। ओम ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। नमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय नमः। ओम श्रादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवस्सरग्निवायवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्य स्वाहा। अग्निवायवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्य नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। यह मंत्र विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक कि हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं, अच्छे मार्ग पर चलाएं। आप हमारी बुद्धि को मेधा बुद्धि बना दें। ऐसी प्रार्थना हम इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को कैसी बना दें? अच्छी बना दें। अच्छे लोगों ने जो कार्य किए, देश में हमारे वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं और हमारे जो अच्छे अच्छे दार्शनिक कार्य करते हैं, वैसी हमारी बुद्धि को बना दें। ये प्रार्थना हम इस मंत्र में कर रहे हैं।
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नशासुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराननेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जो जो भी मंत्र आपको आते हैं वो आप जरूर बोलिए साथ में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतां मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्य सूर्य सव्योतिव्याधि महारथो जायताम् धूर्तिदेनुर्मुरा नर्वाणाशो शक्ति पुरन्दयोश्च जिष्णुरथिष्ठा सभियो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामिनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पचिन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। केवल गरज से आहुतियां होगी। ओम भूरभुवने स्वाहा नमो नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा नमो वायवे नमः। ओम श्रादित्याय स्वाहा नमो आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा नमो अग्निवायवादितेभ्यः नमः। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिह करम् अग्निष्टत शिष्टकृत्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्री सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। नमः शिष्ट कृते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम
सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना एक साथ शुरू कीजिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादि रचाएं विश्व पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से आजादी हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। साथ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़े झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। ये जो यज्ञ प्रार्थना हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो हमने यज्ञ किया, देव यज्ञ, जितने भी मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं,
उन सभी मंत्रों का मीनिंग, अर्थ इस यज्ञ प्रार्थना के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को यज्ञ प्रार्थना YouTube पर मिल जाएगी। और अब एक एक जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सेंटर या विद्यार्थी या परिवार, कोशिश करें यज्ञ प्रार्थना आप लोग याद करें। आप YouTube पर सर्च करेंगे यज्ञ प्रार्थना तो सीधा ये यज्ञ प्रार्थना आएगी। पूजनीय प्रभु भी आप डाल देंगे उस पर तो ये आएगी। तो ये अब याद करना शुरू कीजिए आप, ठीक है। नमस्ते। कनेक्ट आई चा। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। आहिस्ते आहिस्ते जब बच्चे आएंगे, महीने बीते जाएंगे, तो इन सब बच्चों को आचार्य जी यज्ञ प्रार्थना सब सिखाएंगे। अभी जुड़े हैं, ठीक है। YouTube पर इनको कोशिश कीजिए रोजाना ये सुने, है ना, विद्यालय में। वो भी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब होगा जी। हेलो, अगला जो कार्यक्रम है मेडिटेशन, தியானம், எல்லாருமே மாதாஜி சொல்றது புரியுதோ இல்லையோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நிமிர்ந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காருவோம்। सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे बड़े हैं, नेक्स्ट सेशन है हमारा मेडिटेशन का, हम एक ही जगह पे बैठ के आंखें बंद करके पीठ एकदम स्ट्रेट और दिल और दिमाग में कुछ भी ख्याल ना आए। We will keep ourselves free of thoughts. माता जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते टू एवरीबॉडी। ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक है, इसको ठीक करो। रिफ्लेक्शन आ रहा था। हाँ जी, सब बच्चों किस बच्चे ने किया था इस वीक में? Who has done this meditation in this week? Anyone did meditation in this week or not? नहीं? बच्चों, आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है इस मेडिटेशन में? What do you feel in meditation? During meditation, what do you feel? How do you feel? Anyone can answer? Now we will do, and you have to conclude that you have to control. Now the time to control your body, your mind for 10 minutes only. Okay? Sit straight. Be ready mentally. Now I have to do meditation only. मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना है, ठीक है? Meditation means to concentrate your mind or focus on one thing, one place, or on one word. Okay? As I'll direct, you will follow that. Sit straight. Your back, neck, and head should be straight. Close your eyes gently. अपनी आंखों को धीरे से बंद करेंगे। You will wish to open your eyes, but no, I will not open. You will want, I'll move my neck, I will move my hand, but no,
I will not do like this. I will be like, sit like a statue. And check yourself, can I sit like a statue? You think that you are the master of your body. Now you are making your body straight. You are making your body straight. You are closing your eyes. Your eyes are not being closed itself. You are closing your eyes. Take deep breath. Deep breathing. And while breathing, please feel, experience your breath. गहरे लंबे सांस लेने हैं और सांस लेते हुए इन सांसों को अनुभव करना है, महसूस करना है। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। If you are feeling your breath, it means you are concentrating on your breath. If you are not able to feel, it means not. You are not concentrating. Your mind is elsewhere. So observe, feel your breath. Breathe in 1, breathe out 2, breathe in 3, breathe out 4. Like this, count your breath up to 10. सांस अंदर आ रही है 1, बाहर जा रही है 2. इस तरह से 10 तक गिने। जब आप सांसों को गिनेंगे, देखेंगे, आप एकदम स्टैचू की तरह हो जाएंगे। If you are not feeling your breath, it means you are moving your body, your mind. Now feel your tip of nose. अपने नाक के अगले भाग को फील करें। Try to feel. There should not be any movement in your body. Try to feel your breath, your tip of nose. Now feel your whole body and check if your body is straight or not. Is it still or moving? There is shaking or not? If there is shaking, please stop it. This body is given me by God. I am not able to form this body. ये शरीर मुझे परमात्मा ने दिया, मैं अपने आप इसे नहीं बना सकता। This whole universe is given by God. ये सारा संसार मुझे परमात्मा ने दिया है। Because of this, I am able to live, to survive. इस संसार के कारण ही मैं जिंदा रह पा रहा हूँ। That God is my father, my mother, who always be present with me, is always present with me, within me. He is all around me.
और भगवान मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं, मेरे बाहर चारों ओर हैं। The foremost name of the God is Om. भगवान का सबसे मुख्य नाम ओम है। We are remembering him with his own name Om. उसके मुख्य नाम ओम से हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। While chanting Om, please listen your own sound. ओम बोलते हुए ओम की आवाज को सुनना है ध्यान से। गहरा लंबा सांस, डीप इनहेलेशन। ओम, यू आर आवर प्रोटेक्टर। आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगेन बी साइलेंट फॉर अ while. थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे एंड फील वाइब्रेशंस इन योर माइंड. Oh God, we are thanking you for giving us all these things, this word, this body. हम ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये सब कुछ दिया. We are feeling your presence with me. मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ. हे ईश्वर, हमको अच्छी बुद्धि दें, हम अच्छे रास्ते पर चलें. Give us good intellect so we can go on good path, who can proceed on right path in our life. With these emotions, please chant Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Oh God, you are our protector. You are giver us life and this breath. You destroy our miseries, all difficulties, and you are blissful and give us bliss. May on lead
on good path. हम अच्छे रास्ते पर चलें. Now feel your breath. अपनी सांसों को अनुभव करेंगे. Which are being given by God, जो ईश्वर के द्वारा दी जा रही हैं. And feel your both hands. Move them and fold both palms and keep on your heart. दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखें. Bow your head. Feel the presence of God inside and thank Him. हे ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. You have given this opportunity to learn good things, to feel your presence. आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी उपस्थिति को, आपको अनुभव कर पाए. हमने अच्छी चीजें सीखी, सीख रहे हैं. आपका धन्यवाद करते हैं. Rub your hands. अपने हाथों को रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे. Touch your face and forehead. Keep both palms on your both eyes. दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें. Blink your eyes inside. आंखों को अंदर ही खोलें, बंद करें. And now be normal. और सामान्य हो जाएं. सबका धन्यवाद. नमस्ते जी. ये लापते जी. धन्यवाद माता जी. यहाँ पे बच्चों ने जो फीडबैक दिया है स्कूल में, अच्छा, वो भी थोड़े थोड़े करते हैं, थोड़े जवाब नहीं दे रहे. आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी 3-4 महीने से जुड़े हैं, तो इनको भी प्रभाव आएगा आपके मेडिटेशन का. तब तक हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे. ठीक है. धन्यवाद माता जी. धन्यवाद. तो அடுத்தது வந்து நம்மளோட பஜன் செஷன். இப்போ சென்னாபுரி நயனப்பன் நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட் ஸ்கூல்ல 2 பசங்க பால்ராஜ், சாம், அவங்க பேர் கொடுத்திருக்காங்க. தயவு செய்து நீங்க வந்து பஜன் பாடுங்க. அவசரம் இல்ல, அமைதியா வாங்க. ஒரு நிமிஷம். சென்னாபுரி ஸ்கூல். எஸ் சார். இன்னும் கொஞ்சம் மைக்ல வந்துருங்க, கொஞ்சம் வீடியோல வந்துருங்க. பால்ராஜ் பாடுங்க. மைக் அன்மியூட் பண்ணுங்க. இன்னொரு அண்ணா இருக்காரா, விக்கி, யூ கிவ் யுவர் மொபைல். அந்த மொபைல் முன்னாடி பாடு. அந்த மொபைல்ல பாடு. டேய் உட்காருங்கடா. இப்படி பண்ணீங்கடா, உட்காருங்கடா. Vicky, are you ready? Yeah. பாடுங்க. அம்பி குருவி இன்னும் அடிக்கம்மா ஆராடிப்பேன் இன்னமாரமா உம்மை உள்ளு பலத்த ஆராடிப்பேன் உம்மை உள்ளு பலத்த
அன்பு கூறுவி ஆராதனி ஆராதனி அல்லேலூயா ஆராதனி ஆராதனி எல்ரோடி அப்பா எல்ரோடி என்ன கண்டீரே நன்றிரையா எல்ரோடி அப்பா எல்ரோடி என்ன கண்டீரே நன்றிரையா உமக்கே என்ன கண்டீரே நன்றிரையா உம்மு பலத்தோ அம்பி கூறுவி ஆராதனி ஆராதனி அல்லேலூயா ஆராதனி ஆராதனி அப்பா ஏகவரப்பா ஏகவரப்பா என்ன கண்டீரே நன்றிரையா ஏகவரப்பா ஏகவரப்பா என்ன கண்டீரே நன்றிரையா உமக்கு என்ன கண்டீரே நன்றிரையா உம்மை உள்ளு பலத்தோர் ஆராடிப்பே உம்மை உள்ளு பலத்தோர் அம்பி கூறுவி ஆராதனி ஆராதனி அல்லேலூயா ஆராதனி ஆராதனி எல்ரோடி அப்பா எல்ரோடி சுக தந்தீரே நன்றிரையா ஓம் 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 எல்ரோடி என்ன கண்டீரே நன்றிரையா உமக்கு என்ன கண்டீரே நன்றிரையா உம்மை உள்ளு பலத்தோர் ஆராடிப்பேன் உம்மை ஹலோ பஜன் 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 சின்னதா இருக்கணும் பஜன் பஜன் சின்னதா இருக்கணும் ஹலோ பஜன் சின்னதா ஹலோ பஜன் பஜன் சின்னதா இருக்கணுமா இப்போ அடுத்தது பஜன் பஜன் தயவு செய்து பாடும்போது சின்ன பஜனா இருக்கணும் பெரிய பஜன்லாம் வேண்டாமா உன்னாலம்பி வந்த நான் வெக்கப்படல நான் இயேசுகிட்ட வந்த நான் வாதி ஹலோ பஜன் போதும்ப்பா நீ வேணுமா ஹலோ சின்ன சின்ன பஜனா பாடுங்க விக்கி just tell them to sing a small bhajan bhajan is too big okay yeah small bhajan Okay, okay. okay ரெண்டாவது குழந்தை குமார் லோகேஷ் லோகேஷ் சின்ன பஜனா பெரிய பஜன்லாம் வேண்டாம்ப்பா பாடு லோகேஷ் அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பேன் மாறுமா வளர்த்தோன் அன்பு கூறுவே ஆராதன் ஆராதன் அல்லேலூயா ஆராதனை ஆராதனை இழுவரப்பா இழுவரப்பா சுகம் தண்டிரி நன்றியா தண்டி சுகம் தண்டிரி நன்றியா உண்மை உள்ளு வளர்த்து ஆராடிப்பேன் உண்மை உள்ளு வளர்த்து அன்பி கூறி ஆராதனை
Alleluia, Aradhan, Aradhana. Yagavarappa, Yagavarappa, Enna Tandire, Nandriya, Umakke Enna Tandire, Nandriya, Ummai Ulluvalattu, Aradhipen, Ummai హలో పోదంపా హలో Vicky, I think this too big of bhajans and too big of carols. We'll next time insist singing, making them sing bhajans. Okay? Sorry. இப்ப எல்லாரும் போங்க please. In fact, I'm sorry, those children are supposed to sing bhajans. They landed up singing Christmas carols, for which I'm extremely sorry. Next Sunday, we will see to this, we enhance our culture, our Hindu culture, right? Only one request, let us get things back onto the road, right now. Our next session is Naitik Shiksha. Acharya Mishra ji. ओम नमस्ते जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। ओम य प्राणतो निमिषतो महत्वैकयेद्राजा जगतो बभूव यईशे यस्य द्वपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। इस प्रातःकालीन अमृत वेला में सर्वप्रथम सभी प्यारे बच्चों को, इसके आयोजकों को नमस्ते। तो पिछले दिनों जो हमारी चर्चा चल रही थी तीर्थ के संबंध में, तीर्थ वो होते हैं जो हमको तारते हैं, हमारी समस्याओं को कम करते हैं, उनको तीर्थ कहा गया है। तो पिछले दिनों दो तीर्थों के विषय में चर्चा हो चुकी थी। एक तो सत्य, क्योंकि जब हम सत्य का आचरण करते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, समस्याओं से दूर हो जाते हैं। दूसरा क्षमा, जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। आज अगला तीर्थ है इंद्रिय निग्रह। शास्त्रों में कहा गया है सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्यं परम तीर्थम अहिंसा तीर्थम उच्यते सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जवमेव च तीर्थानाम उत्तमं तीर्थम विशुद्धर्मनसा पुनः। इसमें अनेक तीर्थ बताए गए। जो तीसरा तीर्थ है वो इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना। देखिए, परमपिता परमात्मा ने इस संसार में मनुष्य जीवन को सरल बनाने के लिए हमको जहाँ अनेक साधन दिए हैं, वहां 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का भी साधन दिया है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। तो इनसे हम
जीवन यापन करते समय अपने जीवन को सरल बनाते हैं। लेकिन जब हम इन इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, इंद्रियासक्त हो जाते हैं, इंद्रियों के पीछे चलने लगते हैं, तो हमारा जीवन गड़बड़ा जाता है। उदाहरण के लिए परमपिता परमात्मा ने हमारी आंख बनाई है, तो आंख देखने के लिए है, लेकिन आंख से देखते समय यदि हम किसी चीज पर आसक्त हो जाते हैं, उसी की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये आसक्ति है और इससे हमको बच करके रहना है। क्योंकि कहा गया है, एक जगह और भी कहा गया है कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरे विपंच एका प्रमादी स कथम न हन्यात यो सेवते पंच भिरे विपंच। कुरंग मातंग, यहाँ पर बताया गया है कि 5 उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले उदाहरण दिया गया है हिरण का। हिरण जो है वो शब्द के वश में, शब्द पर आकर्षित होकर के ध्वनि सुनता है और उससे वो जो है वो मारा जाता है। कुरंग मातंग। इसी तरह से जो अगला बताया गया हाथी। हाथी जो है वो स्पर्श त्वचा का सुख लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो भी जाल में फंस जाता है और बंधन में फंस जाता है और इस तरह से उसकी स्वतंत्रता भंग होती है। तो कहा गया है कुरंग मातंग पतंग भृंग। और पतंगों को आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं रात को समय, बरसात में आपको बहुत दिख जाएंगे। जिस समय कोई लाइट जलती हुई होती है तो उसको ऊपर गिरते हैं जाकर के, और गिरने से वो भस्म हो जाते हैं। तो ये आंख का जो रूप है, आंख का विषय, उसको बस में न करने के कारण वो नष्ट हो जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग। इसी तरह से भौरा जो है वो सुगंध के चक्कर में मारा जाता है। मीना हता पंच भिरे विपंच। और जो मछली है वो स्वाद के चक्कर में जल के किनारे आती है और जाल में फंस जाती है। तो शास्त्र कहता है कि 5 विषयों में फंस करके 5 तरह के जो जंतु बताए गए हैं उनका नाश हो जाता है। आगे कहते हैं एका प्रमादी सकथम न हन्यात यो सेवते पंच भिरे विपंच। ये तो एक इंद्रिय का इन्होंने भोग भोगा है और इनका नाश हो गया। अब मनुष्य यदि 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से भोग भोगेगा तो वो क्यों उसका सर्वनाश नहीं होगा, ये बताया गया है। तो विद्यार्थियों के लिए हमने पहले बताया था कि उसके 5 लक्षण होते हैं, उनमें एक लक्षण था भगुले जैसा ध्यान। अब देखिए, ध्यान में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप इंद्रियों को वश में रखेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों को जो परमपिता परमात्मा ने जो उनका उपयोग दिया है, उसको सही उपयोग करना सीखेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। नहीं तो आप स्वाद के चक्कर में, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं कितने खाएगा, उन्हीं के चक्कर में पड़ जाएगा। इसी तरह से अलग अलग इंद्रियों के विषयों को हम समझ सकते हैं। जब हम किसी इंद्रिय के विषय में फंस जाते हैं तो उसका अर्थ होता है फिर हम सब कुछ भूल करके और उस विषय की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि हमको इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसना है, क्योंकि ये एक तरह के भोग हैं। जिस तरह से हम मुख से भोजन करते हैं, उसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियों से भी हम भोग करते हैं। जब हम 5 ज्ञानेंद्रियों से भोग कर रहे होते हैं, उस समय आप समझिए कि हम परमपिता परमात्मा से हमारी दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि इंद्रियों का भोग करने का तात्पर्य है रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है, व्यक्ति फिर अंधकार में चला जाता है। लेकिन जब इंद्रियों को वश में रखता है तो उसका सतोगुण बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों को वश में यदि आप रखेंगे तो आपका जीवन बहुत सरल रहेगा। अन्यथा इंद्रियों का स्वाद जो है वो आपको अपने वश में कर लेगा। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना है, जिन्होंने रामचरितमानस नाम ग्रंथ लिखा। उनके नाम के आगे लगाया जाता है गोस्वामी।
गो कहते हैं इंद्रियों को। गोस्वामी का अर्थ हुआ जो इंद्रियों को अपने बस में रखे। यदि हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम इंद्रियों के वश में हो गए तो इंद्रियां जो है हमको किधर ले जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं, वो सर्वनाश की तरफ जाता है। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों का सेवन, विषयों में सेवन करने से विषयाशक्ति बढ़ जाती है, और विषयाशक्ति बढ़ने से और फिर सम्मोह बढ़ता है, और उसके बाद जो है उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने से फिर उसका क्रोध आता है, क्रोध आने से सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। तो गीता के दूसरे अध्याय में इस तरह की शिक्षा दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है कि वो इंद्रियों को अपने बस में रखें। जिस तरह से आप टीवी देखते हैं, अब टीवी आप देख रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप हर समय कोई मैच देख रहे हैं अथवा किसी गेम को देख रहे हैं अथवा कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप टीवी के गुलाम हो गए, उसके पराधीन, उसको अपने बस में रखना है। आप उसको देख रहे हैं तो जब आपकी मर्जी हो तो आप उसका स्विच भी बंद कर सकें, इतना कंट्रोल होना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं वो हमको एक साधन के रूप में दी है, इनको साधनों के रूप में ही उपयोग करें। यदि हम इन इंद्रियों के स्वाद के पीछे पड़ेंगे तो हमारा जो मूल लक्ष्य है क्या, पढ़ाई करना, उससे भटक जाएंगे और विद्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी माता जी ध्यान करा रही थी, मेडिटेशन में भी याद रखिए उसी का मेडिटेशन सफल होता है जो इंद्रिय निग्रही होता है, जो इंद्रियों को अपने बस में रखता है। अन्यथा जिस समय आप ध्यान कर रहे होंगे उस समय इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर आपका मन इधर उधर भटकेगा। इसलिए जो अगला तीर्थ जो तीसरा बताया गया है वो है इंद्रिय निग्रह। हम अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करना सीखें, इंद्रियों को बस में रखें। इंद्रियों के बस में हम स्वयं नहीं हो जाएं, इंद्रियां हमारे अनुसार चलें। ऐसा यदि करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए इसको तीसरा तीर्थ कहा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जी, पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, आइंदे हमारे जो भजन सेशन होंगे हमारे कल्चर के अनुसार रहेंगे। आज जो गलती भी दोबारा नहीं होगी। दूसरी बात, நான் பசங்க கேளுங்க, உங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்றேன், ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ராஜி ஒரு 2 வாரமா சொல்றாரு, தீர்த்தம் என்ன, உண்மை பேசுறது, மன்னிக்கிறது பத்தி சொன்னார். இன்னைக்கு நம்ம 5 ஆர்கன், சென்ஸ் ஆர்கன் இருக்குல்ல, ज्ञान इंद्रिया, கண்ணால பாக்குறோம், காதால கேக்குறோம், நம்ம ஸ்கின், மூக்கால ஸ்மெல் பண்றோம், நாக்கால டேஸ்ட் பண்றோம். நீங்க எல்லாருமே இந்த 5 ज्ञान இந்திரியாவை நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்க போறோம். அவர் சொன்னாரு பாருங்க, மீனை ஏதாவது போட்டா நாக்கால சாப்பிடுது, அது மாட்டிக்குது, ரைட்டா? இன்னொருத்தர் நைட்ல பாக்குறீங்க, கண்ணால பார்த்து லைட்ட பார்த்து அந்த ஈ வருது, சின்ன சின்ன ஈ, லைட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா சாவுறது. சோ நம்ம கண்ணுக்கும் நம்ம நாக்குக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கணும். ஸ்கின் கொடுத்திருக்கார். யானை தொடுறதுக்கு ஓடிட்டு பெரிய பெரிய ஆளுங்கள நெட்ல மாட்டுது. சோ அதனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை. சோ இது கூட நம்ம இதனால கூட நமக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது. ஓகே? இன்னொன்னு சொன்னாரு, ஒரு மான் நல்ல ஒரு மியூசிக் கேட்டு ஓடுது, காதால கேட்டுட்டு போயிட்டு மாட்டிக்குது. அந்த ஹண்டர் வேட்டாடுறால பிடிக்கிறான். சோ நம்ம கண்களை கூட நம்மள நம்ம கண்ட்ரோல், அவங்க கண்ட்ரோல் நம்ம இருக்க கூடாது, ரைட்டா? கடைசியா சொன்னாரு, ஹிரன் இருக்குல்ல, அது போக்கஸ் பண்ணி காய் எது பாக்குதோ அதுதான் போயிட்டு தொடுது. சோ அது மாதிரி இருக்கணும் நம்ம. ஓகே? இன்னொன்னு சொன்னாரு, நம்ம ராம்சரித் மானஸ், நம்ம ராமர் பத்திரி எழுந்தவர் கோஸ்வாமி துளசிதாஸ். கோஸ்வாமிக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இந்தியில சான்ஸ்கிரிட்ல இந்த 5 இந்த இந்திரியா இருக்குல்ல, சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்,
யார கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி நல்லா வாடுங்க, அதனால அவருக்கு பேர் கோஸ்வாமியா. சோ நீங்க எல்லா பசங்க இந்த கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, இந்த ஸ்கின் எல்லாருக்குமே நீங்க அவங்க கண்ட்ரோல் இருக்க கூடாது, அவங்க உங்க கண்ட்ரோல் இருக்கணும். கண்டதை சாப்பிடுறது, கண்டதை பாக்குறது, கண்டதை கேட்கறது இல்ல. கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா உங்க லைஃப் நீங்க வெற்றிகரமா இருக்கலாம். அதான் இன்னைக்கு ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ராஜி சொன்னார். ரைட்டா? தயவு செய்து நீங்க உங்க புக்ல போயிட்டு, ரூம்ல போயிட்டு புக்ல நோட் பண்ணி இது என்ன சொன்னா நீங்க எழுதி வைங்க. அத பிறகு நீங்க அதை மறந்துட மாட்டீங்க. புரியுதா? கேட்டோமோ போனோமோ மறந்துடுவீங்க, புக்ல நோட் பண்ணி வைங்க. ஓகேயா? சென்னாபுரி, நைனப்பன் நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட் பசங்க எல்லாமே புரிஞ்சுதா? சாய் பிரஹ்லாத், Shakti Abhinaya. Yes, sir. Saran, elders, anybody wants to react, please put on your mic and do the interact பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இனி என்ன நான் சொன்ன ஏதாவது புரிஞ்சுதா? Yes or no? Hello? Sir. Somebody reply. Yes, sir. யார் அதுமா? யாரு? Yes, sir. புரிஞ்சுது sir. Who's it, madam? Prahlad's mother, sir. I want Prahlad to say something. Prahlad, Sir. you are paying attention, or today class was a bit distractive? It was attentionable, sir. Acharya says control your 5 sense organs so that you can lead a pure. Purinjada? Yedniya? Very good. Okay. Any other child, please? Want to interact before we wind up? Isaran? Enna purinjadu? Lakshmi Lochana? இப்ப நீங்க சொன்னீங்க எல்லாமே புரிஞ்சுது சார். Shakti Abhinaya? Yes, sir. புரிஞ்சுது sir. என்ன புரிஞ்சது? ஏதோ ஒரு லைன் சொல்லுங்க. சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் பத்தி சொன்னாங்க sir. என்ன சொன்னாங்க? நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். அப்ப வந்து லைஃப் கரெக்ட் தானே? Yes, sir. So that அந்த எந்த உலகம் வந்து நம்மள சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வச்சு நம்மள வந்து வீக் ஆக்க கூடாது. ரைட்டா? We should not be like the fish, we should not be like the elephant, we should not be like that heron. You see, we should not be like the insect which comes and goes away, attracted. You understood? So Yes. note panni, we will try our best to put it into action. Right up. Yes, sir. Ramesh Gajala ji, you want to say anything? Vicky Melwani, Asha Mehra ji. Anybody wants anything? We'll wind up. Okay. We will sing the Shanti part. बिल्कुल. Shanti part, who will recite? Which child will recite? Lakshmi Lochana? Lakshmi? Okay. Jo Shanti. अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति ही. धन्यवाद आचार्य जी. आखिर में जो हम बंद करते हैं बाल सत्संग को, आनंद आसन, हंसने की क्रिया. यार சிரிப்பாங்க, அவங்க என்னைக்குமே உடல் நல்லா இருக்கும். வெக்கத்தை விட்டு வயிறு நிறைய சிரிக்கிறவன் நல்ல வாழ்வார். 1 2
3. धन्यवाद. We'll meet next Sunday.